Hello everyone. In this video we will discuss the chapter number 9, that is heredity and evolution. So as you know that evolution part is deleted one, so we will discuss the topic heredity from this chapter. So let's focus on the definition first. So here is the definition. Let's read the definition first. The process of passing traits or characteristics from parents to offsprings is known as heredity. So here the word trait means characteristics and offsprings means the generation, the coming generation. Okay, so it's a very simple basic definition, that the process of passing traits from parents to offspring is known as heredity. Look at this picture also. So in this way, here are the parents and here is the offspring. Then this is also the offspring, these are the parents. In this way, the process of passing of traits from parents to offsprings is known as heredity. Okay, so we can use the word progeny also for the offsprings, and the another term which we will use for the heredity is inheritance. Heredity is also known as the inheritance. The process of heredity is also known as inheritance. Okay, so this is the basic definition, that is the passing down of traits from parents to offsprings. Now we will see how many types of traits we have. So generally there are two type of traits or two type of characteristics, that is first one is inherited and second one is acquired. So let's discuss inherited first. The word inherited means which we inherit from, the characters which we inherit from our parents, the traits that are transferred from parents to the offsprings, that is known as inherited traits. For example, your height, your skin color, your pattern of hair, okay, all these things match to your parents, and this is due to because you are inherited traits from your parents. Okay, another important thing is that these traits are present in the genes and genes are present in the DNA. And also another thing is that these are the genetic variations. Variation means changes, and the changes which are causing due to the genes are known as genetic variations, and these all happens in the reproductive tissues. Okay ji. Next we have acquired traits, the traits that are developed throughout the lifetime in the individual. जो traits जिन्हें हम inherit नहीं करते हैं बल्कि अपने लाइफ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम जिन चीज़ों को हम सीखते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, आसपास के एनवायरनमेंट से, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. फॉर एग्जांपल लर्निंग म्यूजिक, डेवलपिंग मसल्स, गेनिंग नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स वी डेवलप ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. ओके, एंड दीज वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन जो हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम लाते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती, उन्हें हम सोमैटिक कहते हैं. ठीक है जी, और जो पेरेंट्स से मिलती हैं उन वेरिएशंस को हम जेनेटिक कहते हैं. ठीक है, दीज ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में होता है एंड दीज आर पॉसिबल इन दी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़. ओके, सो दीज आर टू टाइप ऑफ traits we have. This is the definition of heredity. So let's move to the another slide now. So here is a picture of parents and there is a difference in the eye color. Parent 1 has brown eye color and parent 2 has black eye color. Okay, so there is a difference of eye color in both the parents. Now here is a question, that which type of eye color is present in the baby or in the offspring, and how these things worked out. ये चीज़ें कैसे होती हैं, कौन सा कलर आएगा, ब्लैक आएगा, ब्राउन आएगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझाई हैं ग्रेगर मेंडल ने. ठीक है, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हमें दिया था मेंडल ने. ओके, कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा करेक्टर है जो डोमिनेट करता है, जो सामने आता है, और कौन सा करेक्टर है जो पीछे रह जाता है. ठीक है जी. सो लेट्स सी नाउ. सो ये जो सारी थ्योरी है डेट वॉज क्लियर्ड बाय ग्रेगर मेंडल एंड ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मंक who studied genetics, that is heredity in plants, and he is also known as the father of inheritance. So Gregor Mendel is known as the father of inheritance. Okay, so for his study he wants some species. ठीक है, उन्हें वो ह्यूमंस के ऊपर
भी वर्क कर सकते थे, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है उनको स्टडी करने, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आने में बहुत टाइम लगना था। ठीक है जी। तो उन्होंने ये सारी स्टडी करने के लिए और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक पी प्लांट चूज़ किया, जिसकी इन्होंने F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो आई, फिर सेकंड जनरेशन जो आई, वो सारी चीज़ें इन्होंने स्टडी की। ठीक है, वीडियो को सुनते जाएंगे ध्यान से, आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट हमारे पास आता है वाई डिड ही चूज़ पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना। ठीक है, उसके भी कुछ रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इट हैज़ सेवरल कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, पी प्लांट जो है उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, फ्लावर कलर, शेप, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, तो हम कंट्रास्ट करेक्टर को लेके ही तो हम चीज़ों को हमने स्टडी करना था। जैसे ये हमारे पास एक स्लाइड थी, ठीक है, ये दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर है, एक ब्लैक आई कलर, एक ब्राउन आई कलर है। तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को स्टडी करके हमने देखना था कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन सा कलर आता है। ठीक है जी। सो पी प्लांट को चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था डैट इट हैज़ सेवरल कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट इन नेचर, नेचर की जो अपने इस प्लांट की नेचर थी वो ये थी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती थी। ठीक है जी, और क्रॉस पॉलिनेशन करवाना भी, आर्टिफिशियली अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाई जाए तो वो भी बहुत ईजी था इसमें। और इसमें अच्छी बात ये थी कि इसका एक शॉर्ट लाइफ स्पैन था, एंड अनदर थिंग इज दैट इट्स ईजी टू कल्टिवेट। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कौन से करेक्टर्स थे जो मेंडल ने लिस्ट बनाई जिनकी। ठीक है जी, जो कि 7 कंट्रास्टिंग जो लिए हैं हमने वो देख रहे हैं हम। तो फर्स्ट कंट्रास्टिंग कलर जो आया था वो फ्लावर का कलर था। ठीक है जी, पर्पल फ्लावर भी देखे, वाइट भी देखे, प्लांट की हाइट टॉल ड्वार्फ, सीड कलर येलो भी था, ग्रीन भी था, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। इसी तरह से फ्लावर की पोजीशन एक्सियल भी थी और टर्मिनल भी थी। ठीक है जी, तो ये कंट्रास्टिंग करैक्टर थे जो अलग अलग पी प्लांट में देखने को मिलते थे। ठीक है जी। सो यहाँ पे और 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा है हमारा रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट हम किसे बोलेंगे, द वर्ड डोमिनेंट इटसेल्फ मीन्स जो पावर में हो। ठीक है जी, जो खुद को डिस्प्ले करे। ठीक है, जो आगे आ जाए, तो जो अपने को डिस्प्ले कर जाता है करेक्टर उसे हम डोमिनेंट करेक्टर कहेंगे, और जो करेक्टर खुद को डिस्प्ले नहीं कर पाता है, सप्रेस हो जाता है, उसे हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो करेक्टर थे ये डोमिनेंट करेक्टर थे। ठीक है, और ये वाले जो करेक्टर थे पी प्लांट के ये रिसेसिव थे। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इनको ध्यान से, व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, द ट्रेट्स दैट गेट एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग में ट्रेट आ जाए, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे डोमिनेंट ट्रेट, और दैट टेक्स ओवर द इनहेरिटेड ट्रेट। मान लीजिए अब इनहेरिटेड ट्रेट का क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। हमने बोला है कि प्लांट जो है वो टॉल है। ठीक है, तो जब उसे चेक किया गया तो मान लीजिए उसमें हम जो कैपिटल टी है वो ले रहे हैं टॉलनेस के लिए, और जो स्मॉल टी है वो ले रहे हैं ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, ये पेयर ऑफ जीन है जिसकी वजह से उसमें करेक्टर आएगा। ठीक है जी, लेकिन जो नेक्स्ट प्लांट आया हमारे पास वो टॉल आया, हालांकि इसमें दोनों प्रेजेंट थे, दोनों करेक्टर थे इस जीन में, टॉलनेस का भी और ड्वार्फनेस का भी। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास जो प्लांट आता है वो टॉल का आया है, तो हम बोलेंगे कि जो ये वाला अलील है, अलील कहते हैं इसे। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी। ये जो अलील है, इस अलील ने अपने आप को डोमिनेट कर दिया, और ये वाला जो करेक्टर है इसको सप्रेस कर दिया, टेक ओवर कर लिया। ठीक है, हालांकि ये भी इनहेरिटेड हुआ था। ठीक है, ये प्लांट में आया है लेकिन ये दबा हुआ रह गया और ये उभर के आया है, इसे हमने बोल दिया डोमिनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया टॉल इज डोमिनेंट ट्रेट है पी प्लांट का, कैपिटल टी को हम हमेशा डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट की रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि प्लांट के अंदर दोनों थे। ठीक है जी, ये वाला टीवी था और ये वाला टीवी था, दोनों थे। ठीक है जी, और याद रखेंगे आप कि ये टॉलनेस के लिए, लेकिन ये जो है ये ड्वार्फनेस के लिए है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर दोनों करेक्टर थे, लेकिन जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई, ठीक है, ये नंबर 1 है, फर्स्ट टी को सेकंड टी के साथ करवाया गया तो पहला हमारे पास आ गया, दोनों कैपिटल टी आ गए, मतलब प्लांट टॉल है। फिर हमने कैपिटल टी को इस टी से करवाया, फिर से इसमें कैपिटल टी है मतलब प्लांट टॉल हो गया, फिर अगेन टी और टी मतलब प्लांट टॉल है। उसके बाद ये जो फोर्थ बना हमारे पास, ये हमारे पास आया है टी एंड टी। ठीक है,
इस प्लांट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये वाला प्लांट जो हमारा ये होगा, ये हमारा प्लांट बनेगा ड्वार्फ। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी आप डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हम समझ रहे हैं कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है आपको। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि जनरली जो हमारे जो ईयर लोब होता है वो अटैच होता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जो ईयर, इस डोमिनेंट में ये है कि ईयर लोब फ्री होता है, अटैच नहीं है, अटैच इसमें है। ठीक है, ईयर लोब फ्री होता है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जब ईयर लोब अटैच होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने आपको इस कैरेक्टर ये शो हुआ है कुछ जनरेशन्स में। ठीक है जी, तो इसे रिसेसिव ट्रेट कहा है हमने। उसी तरह से आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अलील, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन। ठीक है, मान लीजिए हमारी जो जीन है, हाइट के लिए जो जीन है हमारी, ठीक है, उसके हमारे पास दो अलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाइट दो तरह की होगी, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो ये हमारी एक जीन होगी, इसके ये जो अलील बने हैं ये हो गए हमारे, ये हमारे अलील्स हो गए। ठीक है, ये सेट ऑफ जीन है, ये पूरा जीन है, इसके दो अलील है, जिसमें टी जो है वो टॉलनेस के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, इसी तरह से जो करैक्टर हमें दिखाई देते हैं, फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस। जो फिजिकल अपीयरेंस हमें दिख रही है कि वो टॉल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है, उसे हम बोलेंगे फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक कोड, जैसे कि आपके सामने है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये जेनेटिक कोड हैं। ठीक है जी, ये जेनेटिक कोड हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के फिनोटाइप के लिए, कि प्लांट दिखेगा कैसे। ठीक है, दोनों कैपिटल टी आएंगे तो वो टॉल प्लांट होगा, दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे तो ड्वार्फ होगा, मिक्स आएगा तब भी प्लांट टॉल होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट करता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होगा, इट रेफर्स टू अ कंडीशन व्हेन सेम टाइप ऑफ अलील इज प्रेजेंट। ठीक है, दोनों अलील अगर सेम है, मैंने बताया ना आपको कि हाइट के लिए हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, दो अलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर दोनों कैपिटल टी होंगे तो ये सिचुएशन हो गई होमो, इसमें सेम अलील है। ठीक है, अगर हमारे पास टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये अलील्स डिफरेंट है, चाहे जीन सेम है, तो ये होगी हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, यहाँ पे देखिए हमने फिर से आपको मैं होमोजाइगस बता रही हूँ कि व्हेन बोथ द जीन्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट। ठीक है, सेम तरह की जीन का सेट है लेकिन उसमें दोनों अलील सेम प्रेजेंट है। ठीक है जी, डेट इज़ नोन एज होमोजाइगस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया है राउंड सीड करैक्टर लिया है हमने, एक हमने ले लिया है किसके लिए, एक मैं आपको करके बताती हूँ। ये हमारे करैक्टर हमने दो लिए हैं। ठीक है, जो कैपिटल आर है वो राउंड सीड के लिए और जो स्मॉल आर है वो रिंकल के लिए। ठीक है, तो हम कैसे क्रॉसिंग करते हैं, मान लीजिए जैसे 1 2 दे दिया, इसे 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, तो पहले 1 की 1 के साथ करेंगे तो दोनों कैपिटल आर आ गए, फिर 1 की 2 के साथ करेंगे, कैपिटल आर 1, यहाँ से स्मॉल आया। ठीक है, फिर इस 2 और 1, इस सेकंड वाले को 1 से करवाएंगे, फिर से डोमिनेंट कैरेक्टर हम पहले लिखते हैं, तो हमने कैपिटल आर पहले लिखा है, और फिर 2 और 2 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आ गया आर एंड आर। ठीक है जी, तो ये क्योंकि सेम है तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस। ठीक है, और इसमें होमोजाइगस कौन होगा, ये भी होमोजाइगस होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हैं। ओके, और ये जो है हमारे, ये हमारे हो गए हेट्रोजाइगस एलील, जिसमें दोनों के करैक्टर जो शो कर रही है हेट्रोजाइगस हो गई, दोनों होमोजाइगस हो गए। ठीक है जी, हेट्रोजाइगस मैंने समझा दिया आपको कि व्हेन द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इन विच बोथ द जीन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि टी और टी था, इसमें दो डिफरेंट एलील्स से, इट्स नोन एज हेट्रोजाइगस। ओके, अब हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। जो ऐसा क्रॉस जो दो ट्रेड्स के बीच में हो उसे हम बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, और ऐसा ट्रेड जो कि सिंगल ट्रेड, वन ट्रेड के में हो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी, अच्छे से नोटबुक पे करके दिखाऊंगी, तब हम देखेंगे। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन देख लेंगे। जो हाइब्रिड ऑप्शन, जो पेरेंट की फर्स्ट जनरेशन आएगी उसे F1 बोलेंगे, और जो F1 जनरेशन आई है जब उसकी हम फिर से पॉलिनेशन करवाते हैं उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। ओके जी, तो अब ये हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए कैसे कैसे लिया है, ये हमने टी और टी एक पेरेंट ले लिया। ठीक है, और दूसरा पेरेंट हमने ले लिया टी और टी सेम ले लिए।
ड्वार्फ लिया है, यहाँ पे स्मॉल टी लिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको करके बताया था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो इसको और इसको किया तो हमारे पास आया टी और स्मॉल टी। अगेन 1 को 2 से करवाया, फिर से टी और टी आ गया। अगेन 2 को इससे करवाया, टी और टी आ गया। अगेन इससे करवाया तो टी और टी आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी जो आई थी उसमें सारे टॉल आ गए, क्योंकि सब में कैपिटल टी है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया नेक्स्ट में, नेक्स्ट जनरेशन जब हमने ली तो इनके बीच में करवाई, ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई है इनके बीच में करवाई हमने सेल्फिंग करवाई F1 जनरेशन में। ये हमारी F1 जनरेशन आ गई। F1 जनरेशन में जब हमने सेल्फिंग करवाई, इसे अगेन हम 1 2 दे देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 1 को 1 मैंने आपको पहले ही करके दिखाया वैसे। तो ये कैपिटल टी आ गए, फिर से करवाया टी को सेकंड के साथ, तो टी और टी आ गए। फिर इसको करवाया, टी और टी आ गए, और ये आ गया हमारा रिसेसिव 1। ये मैं आपको शो करना चाहती थी यहाँ पे कि फर्स्ट जनरेशन में चाहे जो रिसेसिव ट्रेट है वो आता ज़रूर है, इनहेरिट ज़रूर होता है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। लेकिन जब हम F1 जनरेशन को उसकी आपस में ही सेल्फिंग करवाते हैं तो एक प्लांट हमारे पास जवाब आ जाता है, जिससे ये शो होता है कि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब उसके साथ डोमिनेंट ट्रेट नहीं आता है, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज स्टडी ऑफ अ सिंगल ट्रेट, ठीक है। इन सब में कैपिटल, ये तो प्योर होमोजाइगस है, ये टॉल प्लांट है, लेकिन इसका भी टी डोमिनेट करेगा, इसका भी टी डोमिनेट करेगा, तो ये हमारे हो गए टॉल प्लांट। और ये वाला जो हमारा प्लांट है ये ड्वार्फ आया है, ओके। तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो जब F2 करवाई गई तो रिसेसिव ट्रेट सामने आया है। इसी तरह से हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, जिसमें हम दो करैक्टर साथ में लेते हैं, सिंगल नहीं लेंगे। 2 ट्रेड्स की जब स्टडी होती है उसे हम कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को मैं आपको नोटबुक के ऊपर करवा के दिखाऊंगी, तो इस बाद में समझेंगे, ठीक है जी। उससे पहले हम देख लेते हैं व्हेन कैन रिसेसिव ट्रेट गेट एक्सप्रेस। जो रिसेसिव ट्रेट है वो कब एक्सप्रेस होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी है पीछे। रिसेसिव ट्रेट अपीयर्स ओनली इफ द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स अ कॉपी ऑफ द जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। जब बोथ द पेरेंट्स से, ये थे ना हमारे पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स से जब दोनों पेरेंट्स में से एक ही तरह की कॉपी आएगी, इधर से भी रिसेसिव ट्रेट आए, इधर से भी रिसेसिव ट्रेट आए, तब जो हमारा रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ओके। उसके बाद कुछ मेंडल ने हमें लॉज दिए हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो डोमिनेंस लॉ क्या कहता है कि व्हेन 2 अलील्स ऑफ एन इनहेरिटेड पेयर इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। जो मान लो पेरेंट्स से हमें इनहेरिट किए हैं पेयर, अगर वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, देन द अलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज डोमिनेंट, वेयर इज द अलील दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज रिसेसिव, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मान लो पेरेंट्स से हमें हेट्रोजाइगस अलील मिला है, हेट्रो मतलब जब डिफरेंट कैरेक्टर के उसमें अलील्स हों, तो कहता है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, ठीक है। हमने देखा ना F1 में टॉल जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस कर जाता है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और जो नहीं एक्सप्रेस करता है वो रिसेसिव 1 हो गया। यही वो समझा रहा है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जिसमें जो एक्सप्रेस कर जाता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है, जो नहीं कर पाता है दैट इज रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रखी है, देखो ये फिनोटाइप है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप अगर हम देखें, फिनोटाइप आपको बताया था कि जो बाहर से कलर दिख रहा है हमें, तो फिनोटाइप कैरेक्टर हो गया। जीनोटाइप में जीन्स देख लेते हैं, ये रेड कलर है क्योंकि इसमें प्योर होमोजाइगस था। इसमें क्योंकि कैपिटल ए है ही नहीं, इसलिए वो रेड कलर शो कर ही नहीं पाया है, और ये अलग स्पीशी बन गई क्योंकि इसमें रिसेसिव ट्रेट आया है, तो ये येलो कलर आ गया है, ठीक है। थर्ड देखिए हमारे पास जीनोटाइप ए भी है और ये भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है हमेशा वो डोमिनेट कर जाता है, तो रेड क्योंकि ए के लिए है, तो जो स्पीशी आई हमारे पास वो रेड कलर का ही आया है, ओके। समरी देख लेते हैं हमारे पास अभी, समरी ऑफ मैंडल्स प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस 3 प्रिंसिपल्स ने दिए थे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने समझ लिया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेंगे ज़रा अभी। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 अलील, वो हम समझ चुके हैं, फॉर ईच जीन, बट दे कैन ओनली पास ऑन 1, ठीक है। ये हमें पता चल चुका है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक जीन के 2 अलील होते हैं। फिर से हम हाइट वाले लेते हैं, ठीक है। यही होता है ना, हाइट अगर करेक्टर है तो उस करेक्टर के आगे 2 अलील्स है, मतलब अगर हाइट जीन है तो उसके 2 अलील्स होंगे पेरेंट्स के पास, इधर भी, ठीक है, दोनों पेरेंट्स के पास सेट होगा ये। लेकिन कहते हैं जब वो पास ऑन करेगा नेक्स्ट जनरेशन में तो इसमें से एक ही आएगा,
ऐसे किया था ना हमने क्रॉसिंग, एक इधर से आ रहा था एक इधर से दोनों साथ में नहीं ना जा रहे थे, ठीक है। इधर की क्रॉसिंग 1 की 1 से करवा रहे थे तो टी बना था, ठीक है। 2 की 2 से करवा रहे थे तो स्मॉल टी बना। तो वही वो कह रहा है कि 2 अलील्स होंगे ज़रूर, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इस पेयर में से एक ही जाएगा, ठीक है जी। डेट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी बहुत सिंपल सा लॉ है, लेकिन समझेंगे ज़रा ध्यान से। जीन्स फाउंड on separate chromosome are inherited independently of each other. Genes found on separate chromosomes, सेपरेट क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलती हैं, लेकिन जब इनहेरिटेंस होती है तो वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती है, उनमें मिक्सिंग या किसी तरह की क्रॉसिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास राउंड शेप है, एक हमारे पास येलो कलर के लिए है, ठीक है, एक हमारे पास ग्रीन कलर के लिए है, जीन्स हैं। तो ये जो जीन्स जब आगे इनहेरिट होंगी तो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगी, इनका आपस में किसी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है। अपना अपना जो है वो जीन्स अपने अपना टेक केयर करती हैं और अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ओके, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है जी। ये 3 लॉज मेंडल ने दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ये टॉपिक आप वैसे 8th में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। सो एज यू नो कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, जो कि मेल और फीमेल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मेल में भी हमारे पास जो है वो 22 ही क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे, लेकिन प्लस साथ में क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होंगे XY। सिमिलरली फीमेल में 22 प्लस XX, दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी। सो जब इनकी फ्यूजन होती है तो जो गैमीट्स बन के आते हैं हमारे पास, ठीक है, मेल के जो गैमीट्स बने हैं वो X और Y बना है, फीमेल के जो बने हैं वो X एंड X बना है, ठीक है जी। तो जब इनकी फ्यूज़न होती है तो X और X जब मिलते हैं तो बनता है फीमेल चाइल्ड, और जब हमारे पास X और Y मिलेंगे तब हमारे पास बनता है मेल चाइल्ड, ठीक है जी। सो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। आपने पहले भी टॉपिक समझा हुआ है, और आई होप कि आपको हेरिडिटी चैप्टर क्लियर हुआ हो।